benefited from it, because we had seen some gate questions also, and the gate questions were helpful for them. And today we'll be talking about assignment problem with respect to gate, upcoming all the gate examination. Expected marks are same, which we had seen. That is three question we expect in the gate examination. Okay, I'll be quickly sharing the screen so that you can see my presentation. Okay, tell me if you can see my presentation. The moment you see, मुझे बस बता दीजिए, कोई भी अनम्यूट करके एक बार बता दीजिए. Is the presentation visible? Okay. So this is AI CTE under Ministry of HRD and GIO Prerna scheme for preparing SC/ST students for higher education. So our focus is completely for the higher education, for the post graduation, as well as various entrance examination where you are supposed to get admission after cracking that entrance examination. So yesterday we had seen transportation models. The basic objective of transportation model was to minimize the total transportation cost and to maximize our profit at the end of the day. Today we will be talking about assignment problems. By the name assignment, we understand that we are assigning. What do we assign? We assign. If let's take an example and try to understand. For example, you have multiple resources of man and there are multiple jobs to be performed. So we do the assigning of multiple men performing different jobs. So now let's take an example. If there are four men and there are four jobs, या चार मशीन है, चार मैन है, और हम लोगों को उन हर मैन को मशीन वन पे भेज सकते हैं, हम लोग मशीन टू पे भेज सकते हैं, मशीन थ्री पे भेज सकते हैं, मशीन फोर पे भेज सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जॉब को परफॉर्म करने के लिए. नाउ हाउ डू वी डिसाइड विच मैन विल बी गोइंग टू विच मशीन so that our overall cost comes down and we maximize our profit. So basically when we talk about assignment problem, they are nothing but the special type of transportation problem. The objective is to assign a number of resources to an equal number of activity. So our total cost and our total profit, our total cost comes down and our total profit get increases. Now there can be any resources, man, machine, having varied degree of efficiency for performing different activities and jobs. Now, when we talk about the mathematical model, let's try to understand this. The assignment problem is nothing but the variation of the transportation problem as we had discussed with two characteristics. The matrix, basically we see here, we see a square matrix. The optimal solution would always be such that there will be only one assignment in a given row or a column of the cost matrix. Optimal solution is nothing but the final solution which we are focusing on. So where all the assignments are done in such a way that every man is assigned to a particular machine where the total cost is less and our profit is maximum. Now let's try to understand if Cij is the cost of assignment of resources, where resources I to activity j, then the assignment problem is to find, as you had seen below, xij
One, if the ith activity is assigned to the jth resources. Now this is how the LPP formulation is done for the assignment problem. In the minimization case you see, and in the maximization case also you see. Now let's try to understand how do we solve this problem, how do we solve this problem and achieve our objective. Our objective is to minimize the cost and maximize the profit and get an optimal solution. Now how do we get an optimal solution? There are various ways to get an optimal solution. One of the way which we had studied is, which we will be studying, is Hungarian method, which was he was another scientist who had developed this method. With the help of this method we will be able to accomplish our desired optimal solution. Now how do we do? We'll be seeing step by step, and we'll be seeing three different types of problem that can be asked in your examination for 1 mark, 2 mark, or 5 marks. Okay, so now let's see step by step various steps how to solve this problem. Okay, I'll just quickly go through these steps. What do we do here? I'll be taking a numerical where you will be able to understand how do we do it. So these are steps. Now what do we do? Let's take an example first, try to understand. Now this is an example जहाँ पे 1 2 3 4 5 there are various jobs. You see there are various jobs, and you see there are different type of employee: Sujay, Pawan, Prasad, Mohan. These are different types of employees. Now what we are supposed to do is that we are supposed to assign every we are supposed to assign in such a way that the right employee is doing the right job, and we accomplish or we attain the maximum efficiency with minimum कॉस्ट. सो नाउ इन दिस एग्जाम्पल बहुत सिंपल तरीके से मैं असाइनमेंट कैसे कर सकता हूँ. मैंने जॉब वन को, मतलब जॉब वन को पहले एम्प्लॉय को जॉब वन दे दिया, सेकंड एम्प्लॉय को जॉब टू दे दिया, थर्ड एम्प्लॉय को जॉब थ्री दे दिया, फोर्थ एम्प्लॉय को जॉब फोर दे दिया, और फिफ्थ एम्प्लॉय को जॉब फाइव दे दिया. बट is this the right way? This can be the this can also be the right way, but is this the optimal solution? No. हम ये नहीं बोल सकते कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, बिकॉज वी हैड जस्ट फॉलोड द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ फ्रॉम फर्स्ट टू एंड. हम लोगों ने जैसे जैसे लोग आए वैसे वैसे हम लोगों ने उनको जॉब्स असाइन कर दिए. नाउ हाउ डू वी डू व्हेन वी टॉक अबाउट हंगेरियन मेथड? हाउ डू वी डू? The first step we do is that we develop a cost table from the given problem. If number of rows and columns are not equal, मतलब हमारा मैट्रिक्स अगर इक्वल नहीं है, if the rows and columns are not equal, we always add, if the rows are less we add a zero cost dummy cell, if the column are less we add zero cost dummy cell. Now in this case if you see the jobs, अगर 5 जॉब परफॉर्म करनी है तो 5 एम्प्लॉइज are available there. If you see 5 jobs are to be performed, 5 employees are available there. So we can say that this matrix, this problem is a balanced problem. मतलब जितने jobs है उतने ही employee available है. So it become very easy for me. So what do I do? What is my first step? Is to check. Second step is find the opportunity cost table. So what do you mean by opportunity cost table? First, we locate the smallest element in each row of the given cost table and then subtract that from each element to that row. So मेरा first step क्या है? I identify. I go row wise, job 1, job 2, job 3, job 4, job 5. I see in job 1 which is my lowest, सबसे lowest, job 1 में सबसे lowest मेरा मैं चेक करता हूँ कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. आई सी जॉब वन गोइंग टू सेकंड एम्प्लॉय दैट इज पवन, माय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ओनली 5. जॉब टू अगर मैं रो टू में देखूंगा तो जॉब टू गोइंग टू सुजय, my opportunity cost is only 3 rupees. So in every row similarly job 1, job 2, job 3, job 4 and job 5, these are various row. Now in this row I just go and identify the low minimum or the lowest opportunity cost. Okay, what do I do? The first step,
I identify, and after identifying it मैं क्या करता हूँ, मैं उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को बाकी सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से सब्ट्रैक्ट करता हूँ, डिडक्ट करता हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल जॉब वन has been can be given to 5 employee, and we see the opportunity cost for Pawan is only 5. So what I do, uh, I just subtract it by every row element. That is 5 minus 10, we get 5 for the, if you can see for Pawan 5 minus 5 0 हो जाएगा. For Prasad 13 minus 5 will be 8. For Mohan you see 15 you see for Mohan 15 minus 5. Just a second, I will just share this screen. चैट बॉक्स में लिखिए, इतना समझ में आया आपको? द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई whether my assignment problem is a balance problem, and my second step is to start finding in every row where my opportunity cost, जहाँ पे मेरा opportunity cost कम है, जहाँ पे मेरा opportunity cost कम है. So we had identified where my opportunity cost is low. You can see my opportunity cost for job one यहाँ पे low है, that is 5. यहाँ पे जो second row में 3, 9, 18, 13, 6 is 3. For job through we can see multiple places are there. तो हम किसी को भी select कर सकते हैं. We can select any. Then you see for job 4 this, यहाँ पे 4. Similarly what we do is that we subtract 10 minus 5, we write here 5. 5 minus 5 will be 0. Then 13 minus 8. 15 minus 5 is 10, and 16 minus 11. Similarly, you identify for this, the opportunity cost is 3, that is minimum. You subtract it from the second job 2. So 3 minus 3 is 0. Here we get 6. Then we get 18 minus 3, 15. Then 13 minus 3 is 10. And 6 minus 3 is 3. Similarly, we go ahead. And we do it for job 3 and job 4 and job 5. Now we see in every job 1, job 2, job 3, job 4, job 5, we are having an opportunity cost 0. है ना? हर एक रो के अंदर हम लोगों को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज 0, एंड वी कैन सी दैट एच सी कॉलम एंड रो, what is our objective is to get zeroth value in every column and every row. Now how do we go ahead from here after doing that? जैसे मैंने रो का कर दिया, सिमिलरली मुझे वो कॉलम को आइडेंटिफाई करना है, सिमिलरली मुझे कॉलम्स का भी करना है. now यहाँ पे जीरो है तो जीरो ही हो जाएगा. यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो एक जीरो है. Similarly you go ahead here and you go ahead. Now you see that every row and column are having 0 available. Now what is my next step? I'll just quickly go ahead. Now my next step is making an assignment in the opportunity cost matrix. Now how do we do? I'll be showing this in an example so that you understand. ये भी step 4, what we do and how do we revise the opportunity cost. This all step I will be explaining. Now let's take simplest example, जो मैंने आपको बताया भी था, and we had discussed also this. Okay. Now a machine tool company decide to make 4 sub assembly. Is it clear? So now you see a machine tool through 4 contractor. Sub assembly by 4 contractor. Each contractor is to receive only one sub assembly. The cost of each sub assembly is determined by the bids submitted by each contractor and is as shown in the table below. In thousand of rupees, assign different assembly to contractor so as to minimize the total cost. Now I am supposed to do in such a way that my total cost is minimized. Now let's try to understand how we can do. The first step, मेरा जो पहला स्टेप है वो मुझे चेक करना, क्या चेक करना है, वेदर
there are equal number of assembly and equal number of contractors available. So I see there, if you can see, there are four sub assemblies and there are four contractor. Now this problem is called as balance problem. Is it clear? Now we can proceed for an optimal solution. Is it clear? अभी हम लोग optimal solution के तरफ आगे बढ़ सकते हैं. Now, how do I go ahead? Now, I just do only one thing. What is my first step? In the sub assembly row wise मैं जाऊंगा. In the first row I will identify the minimum opportunity cost, that is 13. Now I will be subtracting 13 by every element of row 1. 15 minus 13, 13 minus 13, 14 minus 13, 17. Similarly I will go here, I will find the minimum is 11. मैं उसी तरीके से यहाँ पे करूंगा. Then again I get an minimum here is 10, and similarly I get an minimum here. My objective is to get 0 in every row, and every column. Is it clear? ये मेरा ऑब्जेक्टिव है. पहले मैं रो में करूंगा and simultaneously I will be doing in the column. Okay, this is clear. Now you see, now if you see here, we had done the same thing. This was my matrix available. ये मेरा matrix था. I had seen 13, I had identified 11, and I had identified 10, and I had identified the 14 where the opportunity cost was low. After you identify beta, you're supposed to do this subtract. Now you can see every row has a zero value, and similarly every column has a zero value. Now do every column has? No. A में है, B में है, C में है, contractor D में नहीं है. So what you do, you again identify the lowest value. The lowest value is 1, and you do it. 4 minus 1 you get 3, you get 1, you get 0, and you get 1 here. Now this is your final matrix. This is your final matrix. ये matrix आपका final matrix हो गया. Now you are supposed to perform the third step. Remember, the first step is to convert into a balance assignment problem. Second step we do is in every row and column we find the lowest opportunity cost, and at the end after solving this we get zeroth value in every row and every column. Now we do the assignment. Now how do we do the assignment? If you see here, I had already written all the step. Examine row until a row with exactly one unmarked zero is obtained. Make an assignment to this single zero by marking a square around it. अब square, circle जो भी आपको लगता है, you can do it. For each zero that becomes assigned, strike off other zero in the same row and column. Repeat the above step for each column with exactly zero cell. With exactly zero cell. If a row and column has two or more unmarked zero and one cannot be chosen by inspection, then choose the assigned zero arbitrarily and continue the process until all zero in the rows are assigned or struck off. I am just keeping this slide for 1-2 seconds so that you can take the screenshot. Okay, I'll just quickly go ahead. Now let's try to do the same thing here. Now what is my third step is do the assignment. पहले मैं क्या करूंगा, I will be identifying row where जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रो में एक ही जगह पे सबसे कम है, दैट इज जहाँ पे जीरो है. इफ देर आर मोर देन 1 0 आई विल लीव दैट रो. मैं पहले रो में जाऊंगा एंड पहले रो में मैंने आइडेंटिफाई किया द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पे देखिए जीरो है. सो आई डू एन असाइनमेंट. व्हेन आई डू एन असाइनमेंट हियर इन द रो आई सी दैट कॉलम, और अगर वो कॉलम में कोई भी जीरो है तो मैं उसको क्या करता हूँ, अगर कोई जीरो है मान लीजिए तो मैं उसके क्या करना है, मुझे स्ट्राइक ऑफ करना है. इज इट क्लियर? दिस इज what I am supposed to do. Now I go in the second row, I see there is only 1 0, I perform an assignment here,
आई चेक द कॉलम, इन दिस कॉलम और कोई जीरो है क्या, नहीं है. आई गो टू द थर्ड रो एंड आई ऑब्जर्व दैट देर आर टू जीरो, सो आई कांट डू एनी असाइनमेंट राइट नाउ हियर. फिर मैं फोर्थ रो में जाता हूँ और मुझे दिखता है कि यहाँ पे सिर्फ सिंगल जीरो है, एंड आई डू एन असाइनमेंट हियर. आफ्टर डूइंग एन असाइनमेंट आई चेक दिस कॉलम वेदर देर, ये कॉलम में अगर कोई जीरो है क्या, यस देर इज जीरो, सो आई कट इट आउट, आई स्ट्राइक इट आउट. इज इट क्लियर? अब मेरा रो में कंप्लीट हो गया आएगा कॉलम वाइज. यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, यहाँ पे भी आई हैड डन द असाइनमेंट, हियर ऑल्सो द असाइनमेंट हैज बीन डन. नाउ हियर यू सी, यू फाइंड ए जीरो जहाँ पे असाइनमेंट नहीं किए, एंड यू डू एन असाइनमेंट. माई ऑब्जेक्टिव इज टू गेट एवरी कॉन्ट्रैक्टर, एवरी सब, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास एक सब असेंबली मैं दे सकूं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास ज्यादा सब असेंबली नहीं रहे. इज इट क्लियर? सो दिस इज व्हाट इज माय, वो ज्यादा तो असाइन हो ही नहीं सकती, हर इंसान के पास एक ही जॉब असाइन होना है. सिमिलरली एवरी कॉन्ट्रैक्टर शुड हैव ओनली वन सब असेंबली, सो दैट द बेस्ट पर्सन हैज गेट द बेस्ट असेंबली. ये मुझे कैसा पता चलेगा, जब मेरा टोटल कॉस्ट कम आएगा, या मेरा सॉल्यूशन जो है ना ऑप्टिमल इज इन नेचर. Okay, now we'll quickly go ahead, we'll try to understand. Okay, now after this, my problem has been solved. हर एक, आप देख लीजिए, हर एक कॉन्ट्रैक्टर के पास एक एक असेंबली हो गई है. इज इट क्लियर? नाउ आई विल जस्ट फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. ओके, और ये नाउ लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल. थोड़े से मैं अभी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल लूंगा विच आर एक्सपेक्टेड टू कम इन योर एग्जामिनेशन. Okay, now we'll be seeing some complex example for your understanding, and we'll be seeing unbalanced and maximization problems also. So till now we conclude that assignment, in assignment models we are supposed to assign, we had seen an example where we had seen there are various jobs and various मेंस अवेलेबल. हमारा काम एक ही काम है कि सही इंसान को सही जॉब दे. ये हमें कैसे पता चलेगा, जब हमारा जो टोटल कॉस्ट है वो कम आए. सो फॉर दैट हम लोगों ने हंगेरियन मेथड को यूज किया. ही इज नथिंग बट अनदर मैथमेटिशियन हु हैज डिराइव्ड दिस मेथड, so that you find the total cost to be minimum. Now how do you do that? The first step was to add, check whether my assignment problem is a balance problem. Assignment problem balance problem कब रहेगा? Where when the number of rows equal to number of column. In short, where जब number of jobs equal to number of allocation, number of machines रहे. For example, if there are 4 jobs, so there should be 4 machines, है ना. अगर 3 रहती तो हम लोगों को एक डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा. अगर 3 जॉब रहती और 4 मशीन रहती तो एक डमी रो को हम लोग ऐड करते. सो दैट बिकम्स अवर स्क्वायर मैट्रिक्स, रो इक्वल टू कॉलम, एंड वी कैन गो फॉर फर्दर solution. Now how do we do that? Let's try to understand. So we had seen in one of the example जहाँ पे हम लोगों ने उसको सॉल्व किए थे, एंड वी हैड सीन अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सब असेंबली एंड कॉन्ट्रैक्टर, and we had seen every contractor had got every assembly, and we had run the assignment. Now we'll be seeing some complex problem to understand. जब complexity आती है तो how do we assign the right person to a right job in such a way that my cost is optimal, या cost मेरा सबसे कम है. Just go ahead and share my presentations once again. Okay. So we see another example. A company has 5 jobs to be done by 5 workers. Now this is another example where you see there are 5 jobs and 5 workers. Each worker are assigned to one and only one job. Number of hours each worker takes to complete a job is given with respect to your matrix. For example, मान लीजिए जॉब टाइपिंग का है, या मान लीजिए कोई और एक्टिविटी का है. सो यू सी देर इज जॉब J1, J2, J3, J4 एंड J5.
and you see there are five workers, w1, w2, w3, w4 and w5. Now what are we supposed to do is that we are supposed to assign every worker every worker w1, w2, w3, w4 and w5. Let's say इनके worker 1 2 3 4 5 worker है, we assign in such a way that they get one job. Now there are various methods to do that, but we had learned that by Hungarian method we can generate an optimal solution. Now how do we do? What is my first step is to identify. I'll be going row wise and I will identifying जहाँ पे minimum मेरा opportunity cost है. If I go row wise and I find out in the first row, I find the opportunity cost W1 J3. Worker 1, job 3. The opportunity cost is less. Then I go in the second row, I find it here. In the third, I find it here. फिर मैं आगे जाऊंगा, आपने नोटिस किया यहाँ पे है, एंड फाइनली ये यहाँ पे. सो what I do is that I subtract it by another opportunity cost. बाकी के opportunity cost से मैं इनको subtract करता हूँ. Okay. Okay. Find the minimum element in each row and subtract it from all the element of that particular row. So we did this. Now these are my opportunity cost. These are my opportunity cost. These are my opportunity cost. ये मेरे opportunity cost है. After doing that, is it clear? This is called nothing but the row subtraction. एवरी रो वी वेंट, वी फाइंड आउट द लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इस तरीके से हम लोगों ने किए. नाउ वील गो साइमल्टेनियसली एवरी कॉलम जहाँ पे जीरो नहीं है. नाउ यू सी, ये अगर मैं कॉलम को देखूँ तो यहाँ पे ऑलरेडी है एक जीरो. मैं जीरो के साथ सबको माइनस करके भी मुझे वही आंसर मिलने वाला है. दैट्स द रीजन आई फाइंड आउट ए रो, ए कॉलम जहाँ पे नहीं है. नाउ यू सी इन द सेकंड there is no zero, so I identify the minimum opportunity cost, that is here. Is it clear? And I subtract it from other opportunity cost. Similarly, I go to J3, I have here. J4 again I have, and J5 I don't have any zero value, so I do it here. So that is nothing but the column subtraction. So मैंने किसके लिए किया था? ये M2 लिखा है, that is nothing but J2, और मैंने फिफ्थ के लिए किया. तो सेकंड कॉलम एंड फिफ्थ कॉलम के लिए I did it. Okay. Okay, jot down कर लिए. Okay. So now we can say that from step 1 and step 2 created at least one zero we had seen in every row and every column. So there is no challenge for us now. Good. Now what do we do next? Now after we had done this, we check. हम लोगों ने previous example में जैसे देखा था, we had checked whether जहाँ पे एवरी रो एंड कॉलम के अंदर जीरो वैल्यू आ गई है, ये आ गई है. फिर उसके बाद वी हैड डन देन असाइनमेंट्स. नाउ वी स्टार्ट डूइंग एन असाइनमेंट. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो, मैं फर्स्ट रो में जाऊंगा. आई विल सी कहीं पे जीरो है क्या. सो आई हैड सीन देर इज वन प्लेस जहाँ पे सिंगल जीरो है, मैं वहाँ पे असाइनमेंट करूंगा. और जैसे ही मैंने यहाँ पे असाइनमेंट किया, इसके कॉलम में अगर कोई जीरो है तो मैं उसको स्ट्राइक ऑफ करूंगा. तो आई हैड स्ट्राइक्ड ऑफ दिस and I had similarly had striked off this. Then I will be going in the second row and I had seen in the second row there is zero here. Is it clear? और कोई zero है क्या? ये zero already strike off है, तो I can do an assignment here. Is it clear? I can do an assignment here. So I had done an assignment here. और जैसे ही मैंने यहाँ पे असाइनमेंट कर लिया, सी देर आर टू मेथड विच विल बी स्टडिंग दिस. दिस इज वन ऑफ द मेथड. एट सिंपली मैंने इसको क्या कर लिया, जैसे यहाँ असाइनमेंट हो गया है, मैं इसको स्ट्राइक ऑफ कर सकता हूँ. इज इट क्लियर? यहाँ पे और कोई नहीं है, मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लिया, यहाँ पे भी एक स्ट्रेट लाइन मार्क कर लिया. दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड आई एम टेलिंग यू, सो दैट आप बहुत आसानी से समझ सको. आई विल जस्ट, इफ यू वांट आई विल रिपीट. पहले मैंने रो वन में यहाँ पे असाइनमेंट किया, बाकी जीरो थे उनको कॉलम में स्ट्राइक ऑफ किया, और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया मैंने.
इज इट क्लियर? मैं सेकंड जगह पे गया, यहाँ पे असाइनमेंट किया, इसको कट कर दिया। फिर मैं थर्ड में जाऊंगा, यहाँ पे एक ही जीरो है, यहाँ पे मैंने असाइनमेंट किया, और असाइनमेंट करने के बाद मैंने इसको स्ट्राइक ऑफ कर लिया। इसके बाद मैं यहाँ पे गया हूँ और यहाँ पे मैंने नोटिस किया यहाँ पे दो जीरो है, तो मैं असाइनमेंट नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सो आई कांट डू एनी असाइनमेंट। फिर मैं कॉलम वाइज जाता हूँ, और कॉलम वाइज जाने के बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे है, तो मैं इसको असाइन कर दूंगा। और इसके रो में कहीं पे है क्या? हाँ है, इसको स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा। अब मैंने कॉलम में असाइनमेंट किया, तो मैंने रो को स्ट्राइक ऑफ कर दिया। सो दिस इज व्हाट द डिजायर्ड solution I get. Is it clear? This is an another method by which we are trying to go ahead one more step, जहाँ पे we see only 4 assignment has been done. Is it clear? जहाँ पे सिर्फ 4 assignment हो रहे हैं, जहाँ पे आप देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो, 1 2 3 4, देर आर ओनली 4 असाइनमेंट हैज बीन डन, बट देर आर वर्कर्स कितने हैं? 5 वर्कर है। सो हाउ डू आई गो अहेड? how do I go ahead? Now that's the reason I'm giving you this method of striking off. इसको मैं फिर से explain करता हूँ, just a second. ये स्ट्राइक ऑफ्स को आप हटा दीजिए, स्ट्राइक्स ऑफ को हटा के मैं आपको समझाता हूँ। What was my फर्स्ट में व्हाट वाज माय फर्स्ट थिंग विच आई हैड स्टडीड? मैंने क्या स्टडी किया था? रो कॉलम का जीरो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे आगे बढ़ना था और मुझे असाइनमेंट करना था। सो मैं W1 में जाता था, मैं असाइनमेंट करता था। यहाँ पे मैंने देखा एक जगह पे जीरो है, मैंने असाइनमेंट किया, इसको कट कर दिया, इसको कट कर दिया। इज इट क्लियर? इसको कट कर दिया, इसको कट दिया। W2 में जाऊंगा मैं, अब मैंने देखूंगा कि यहाँ पे एक जीरो है, दो जीरो है नहीं, एक जीरो है, मैंने यहाँ पे असाइनमेंट कर दिया। ठीक है, और कहीं पे मुझे करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे स्ट्राइक ऑफ। फिर मैं W3 पे जाऊंगा, मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे और कहीं पे है क्या? नहीं। फिर मैं W4 में जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं देखूंगा दो जगह पे जीरो है, तो मैं असाइनमेंट नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे को सिंगल प्लेस आइडेंटिफाई करना है। मुझे सिंगल प्लेस आइडेंटिफाई करना है, दैट इज जहाँ पे सिंगल जीरो है, तो यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। फिर मैं कॉलम वाइज चलता हूँ, यहाँ जाता हूँ, यहाँ ऑलरेडी हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया। मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जीरो है भाई, यहाँ पे एक है, इसके अब कॉलम में कहीं पे है क्या? आई गो एंड आई स्ट्राइक ऑफ। इज इट क्लियर? अब ये मेरा असाइनमेंट हो गया। नाउ व्हाट आई सी इज दैट इन दिस, मुझे कितने असाइनमेंट चाहिए थे? 5 असाइनमेंट चाहिए थे, मतलब हर जॉब के पास, हर वर्कर के पास एक जॉब हो, बट यहाँ पे 4 ही है। सो वी गो वन मोर स्टेप अहेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन सच ए वे दैट मेरा सॉल्यूशन भी ऑप्टिमल हो और हर वर्कर के पास एक जॉब रहे। अब ये कैसे होता है? इसको सॉल्व करने का एक बहुत सिंपल तरीका है, दिस इज नथिंग बट दी शॉर्टकट, जहाँ पे मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, ये आप ध्यान में रख लीजिए। एंड दी शॉर्टकट इज, जैसे ही मैंने इस रो में यहाँ पे असाइनमेंट किया था, इस रो में पहला असाइनमेंट किया था, जैसे ही मैंने यहाँ पे असाइनमेंट किया, मुझे इस कॉलम को स्ट्राइक ऑफ करना है। इज इट क्लियर? द मोमेंट आई हैड डन असाइनमेंट हियर, आई नीड टू स्ट्राइक ऑफ दैट कॉलम। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे करता हूँ, जीरो को तो करना ही है, बट उसको उसको स्ट्राइक ऑफ भी करना है, पूरे इसको यहाँ कर दिया। सिमिलरली जब मैंने इसके रो में किया, तो मुझे स्ट्राइक ऑफ किसको करना है? कॉलम को कर रहा है। सिमिलरली अब इसमें तो कोई रो को नहीं किया, इधर भी नहीं किया। अब जब मैंने इसमें कॉलम में असाइनमेंट किया, तो मैं अब कॉलम को स्ट्राइक ऑफ नहीं करूंगा, मैं रो को स्ट्राइक ऑफ करूंगा। इज इट क्लियर? दिस इज माय दिस इज माय थर्ड, this is my fourth step. Is it clear? This is my fourth step. Now I will just go ahead. Okay. This is how I get, if the optimal assignment is not formed, go to the fourth step, that is there should be 5 straight line. हम देखते हैं वहां पे 1 2 3 4। Is it clear? We don't find the 5 straight line.
Go to the 5 straight line. To get 5 straight line, what do? We'll just go ahead, जो मैंने आपको बताया था, we just strike off, 0 को strike off कर लिए थे, and we had generated this straight line. So we have 1 2 3 4 straight line. Now what do we do? What is my next step? Is that my next step is that ensure all zeros are covered with minimum one line. You see all the zeros has been covered with minimum one line. Find the minimum element not covered by any line. अब इस मैट्रिक्स में मुझे क्या आइडेंटिफाई करना है? ऐसा एलिमेंट आइडेंटिफाई करना है जो कोई भी लाइन से मतलब जो मिनिमम है, मिनिमम एलिमेंट है और वो कोई भी लाइन से कवर्ड नहीं है. नाउ व्हाट इज दैट मिनिमम एलिमेंट? आप देखोगे ये मेरा मैट्रिक्स बचा हुआ है, or and you see this is my matrix that has been left. Now I find that minimum element, that minimum element is pi. मिनिमम एलिमेंट क्या है बेटा? फाइव है. अब मैं क्या करूंगा, इस मिनिमम एलिमेंट को देखो अभी अच्छी से समझना. सब्ट्रैक्ट द एलिमेंट 5 फ्रॉम द एलिमेंट नॉट कवर्ड बाय द लाइन. मुझे 5 को सब्ट्रैक्ट करना है 11 माइनस 5, 11 माइनस 5, 9 माइनस 5, 13 माइनस 5, उनसे करना है जहाँ पे कोई लाइन स्ट्राइक ऑफ नहीं हुई है या कोई भी लाइन से वो कवर नहीं हुए, और ऐड करना है जहाँ पे इंटरसेक्शन है, टू दी इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन कहाँ पे आप देखोगे? ये वाले जगह पे इंटरसेक्शन है. ये देखिए 8 10 6 में क्या है? इंटरसेक्शन है, और ये वाली जगह पे इंटरसेक्शन है जहाँ पे दो लाइन स्ट्राइक ऑफ हुई है. सॉरी, इज इट क्लियर? मैं इसमें समझाता हूँ आपको. ये जगह पे इंटरसेक्शन है 3 5 1 0. मैं आगे चला गया था. सो मैंने यहाँ क्या करूँगा? ऐड करूँगा. सो 3 + 5 8 हो गया था. यहाँ पे 5 + 5 10 हो गया. यहाँ पे हो गया. इज इट क्लियर? जहाँ पे भी मुझे इंटरसेक्शन है. इज इट क्लियर? ये होने के बाद मेरा, जहाँ पे भी इंटरसेक्शन होने के बाद, ओके ओके, ये होने के बाद मैंने आइडेंटिफाई किया. मेरा लोएस्ट एलिमेंट 5 था. ये देखिए ये 5 था. जहाँ पे भी इंटरसेक्शन था यहाँ पे मैं ऐड 5 करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड 5 करूँगा, यहाँ पे ऐड 5 करूँगा, और यहाँ से 5 को सब्ट्रैक्ट करूँगा इन जगह से. इज इट क्लियर? ओके. नाउ ये होने के बाद मैंने ऐड कर दिया. सब्ट्रैक्ट होने के बाद आई गेट दिस मैट्रिक्स, मतलब 42066300488011476 एंड 81060012070. ये होने के बाद मैं असाइनमेंट करता हूँ. मैं इस पे भी कर सकता हूँ, इस पे भी आपको दिखा सकता हूँ ना. असाइनमेंट करने का तरीका, मैं पहले रो को जाता हूँ. इज इट क्लियर? पहले रो में जाता हूँ, यहाँ पे मैं असाइनमेंट करता हूँ, और इस रो में, सॉरी, इस रो में असाइनमेंट होने के बाद अगर इस कॉलम में कहीं पे जीरो है तो मैं उनको क्या करता हूँ? स्ट्राइक ऑफ करता हूँ. मैं उनको कट कर देता हूँ. इज इट क्लियर? मैंने कट कर दिया. इसका मतलब मैं अब यहाँ पे असाइनमेंट नहीं कर सकता हूँ. मतलब ये आदमी को ऑलरेडी काम दे दिया है. एक आदमी को एक ही काम मिल सकता है. दैट्स द रीजन बिहाइंड दिस. नाउ आई गो टू द सेकंड रो. आई फाइंड हियर, ये तो ऑलरेडी कट गया ना, तो यहाँ पे मैं असाइनमेंट दे सकता हूँ. तो यहाँ पे मैंने असाइनमेंट दे दिया. The moment I had given assignment here, I find, do we have any other zero available? No. Is it clear? I go here. Okay, I can do here an assignment because यहाँ पे एक ही जीरो है. इसके कॉलम में मैं चेक करूंगा, यहाँ पे कोई भी जगह पे और लोएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है. इज इट क्लियर? सिमिलरली फिर मैं यहाँ जाऊंगा. यहाँ जाने के बाद मैंने चेक किया, भाई यहाँ पे दो है तो मैं कर नहीं सकता हूँ. इज इट क्लियर? फिर यहाँ जाऊंगा. यहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि मैं यहाँ कर सकता हूँ, क्योंकि ये तो ऑलरेडी स्ट्राइक ऑफ हो गया है. इसमें कहीं जीरो है क्या? हाँ. फिर यहाँ पे हो चुका है असाइनमेंट, यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे कॉलम में नहीं हुआ है, तो ये. नाउ व्हाट डू आई सी इज दैट एवरी वर्कर हैज बीन असाइंड एट हैज बीन असाइंड ए जॉब. हर वर्कर के पास एक जॉब आ गया है. नाउ यू सी, अगर आप देखोगे J1 को W3 असाइन हुआ है, J2 को W2 असाइन हुआ है, जॉब वर्कर 1 को थर्ड जॉब हुआ है, वर्कर 4 को फोर्थ जॉब हुआ है, वर्कर 5 को फिफ्थ जॉब हुआ है. तो दिस हैज बीन असाइन.
नाउ ये 18, 24, 24, 24, 36 ये मेरा प्रॉब्लम जो था, दिस वाज माय प्रॉब्लम, जिसमें ये मुझे डेटा गिवन था। इज इट क्लियर? दिस वाज डेटा हैज बीन गिवन टू मी, कि इतना मुझे कॉस्ट लग रहा है, तो ये कॉस्ट को लिख दिया। इस केस के अंदर ये कॉस्ट नहीं था, ये इतना समय लग रहा था उसको उस काम को करने के लिए। सो मिनिमम टोटल टाइम इन आवर इज, मैं इनको ऐड कर दूंगा, दैट इज 126 आवर। सो दिस इज the optimal solution, and this is nothing but the unique solution, because इससे कम घंटे लगने ही नहीं वाले। आप कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लीजिए। इज इट क्लियर? सो दिस इज, आई गेस यू अंडरस्टूड दिस। नाउ विल बी सीइंग अनदर एग्जांपल जहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन आए। ओके, सो यहाँ तक सभी को समझ में आया है? सो विल जस्ट क्विकली रिवाइज व्हाट वी हैड स्टडीड। सो in today's class we had studied assignment problems. In the last class, we had seen transportation problem. We had seen the objective of assignment problem is to minimize the cost. मतलब हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल देखा था जहाँ पे हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था, एवरी, if there are four men and there are four job, we have to do an assignment in such a way that हर इंसान के पास एक जॉब रहे करने के लिए। और वो इन इन सच ए वे वी आर सपोज टू असाइन दैट मेरा जो टोटल कॉस्ट है वो कम लगे उस इंसान को, वो जॉब परफॉर्म करने के लिए मेरी एफिशिएंसी ज़्यादा रहे, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मैक्सिमाइज रहे। सो दिस वाज माय ऑब्जेक्टिव। विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जेक्टिव वी हैव वेरियस मेथड ऑफ डूइंग एन असाइनमेंट। पहले इंसान को पहला दे दो, बट वी हैड सीन आफ्टर डूइंग दैट द कॉस्ट इज नॉट मिनिमम एज वेल एज द प्रॉफिट भी मेरा मैक्सिमम नहीं हो रहा था। सो वी हैड स्टडीड ए मेथड दैट वाज हंगेरियन मेथड, where it was by which we can easily do। अब हंगेरियन मेथड एक मैथमेटिशियन ने बताया है कि हाउ डू वी go ahead and we do that, and we do by Hungarian method. In this method we had seen how do we proceed step by step to get an optimal solution. Now we had seen first thing we are supposed to do to get an optimal solution. First we need to identify whether the given matrix is following a condition of an balanced assignment problem, that is row equal to column, that is nothing but a square matrix, that is nothing but अगर जॉब और वर्कर का एग्जांपल है तो हर वर्कर को एक एक जॉब असाइन हो। दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड। नाउ वी गो अहेड एंड वी हैड सीन दैट जब अगर ये प्रॉब्लम बैलेंस प्रॉब्लम है, तो ये बैलेंस प्रॉब्लम को मुझे सॉल्व करने के लिए मेरा पहला स्टेप था, मैं रो में मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखता था और उस रो के मिनिमम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को उस रो के हर एक एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करता था। सिमिलरली आई वाज सपोज टू डू फॉर एवरी रो, and after doing that I am supposed to do for every column, so that every row and every column I have one zero वैल्यू और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अवेलेबल। फिर मैं असाइनमेंट करता था, हाउ डू आई एम सपोज टू डू एन असाइनमेंट। मैं रो वाइज जाता था, उस रो को आइडेंटिफाई करता था जहाँ पे सिर्फ सिंगल जीरो है, जहाँ पे भी सिंगल जीरो है वहीं पे मैं असाइनमेंट करता था, वहाँ पे मैं असाइनमेंट करता था। और जिस रो में मैंने असाइनमेंट किया उसके कॉलम को चेक करता था, और उस कॉलम में जाके जिस रो में मैंने असाइनमेंट किया उस कॉलम में अगर कोई जीरो है तो मैं उसको स्ट्राइक ऑफ कर देता था। सो दिस इज हाउ आई वॉज प्रोसीडिंग, और इसी तरीके से मैं स्टेप बाय स्टेप जाता था एंड आई एम सपोज टू परफॉर्म दी असाइनमेंट्स। सो इस तरीके से मैंने इसको आगे बढ़ा और मैंने देखा कि बहुत बार ऐसा हो रहा था कि जितने असाइनमेंट्स मैंने करना था उतने असाइनमेंट्स इसको सॉल्व करने के बाद नहीं हो रहे थे। सो देन आई फॉलोड दैट स्ट्राइक ऑफ मेथड, जहाँ से मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालता हूँ, मतलब नंबर ऑफ जॉब्स हैज बीन गिवन टू नंबर ऑफ वर्कर्स आर इक्वल इन नेचर। नाउ हाउ डू आई डू, वो उसका मैंने एक एग्जांपल देखा था। अब मैं कुछ एग्जांपल्स देखूंगा जहाँ पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी हम लोग जनरेट करेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो आपका जनरली गेट एग्जामिनेशन में आते हैं, एंड अनबैलेंस प्रॉब्लम का एक एग्जांपल देखेंगे। आई विल जस्ट क्विकली शेयर दी स्क्रीन वंस अगेन।
नाउ विल सी अनदर एग्जांपल जहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन कैन बी ऑप्टेड। मतलब ये एग्जांपल ही मैंने ऐसे लिया है जहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशन आएंगे, वो कैसे आएंगे आपको समझ में आएगा। नाउ यू सी इन दिस एग्जांपल, जस्ट गो थ्रू द एग्जांपल, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू रीड दिस एग्जांपल, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, इफ यू वांट यू कैन टेक दी स्क्रीनशॉट्स ऑल्सो, या फिर क्लास के बाद में आपको ये पीपीटी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। एंड यू हैव डाउट एनी टाइम यू कैन आस्क मी। Okay, so I hope you have taken these screenshots. We'll just quickly go ahead. Okay, good. I got the reply. Now, what is my first thing? My first thing is to, okay, good, good. Okay. Now subtracting smallest number from each row, we get the following table, and you can see this table. Now this was my question that has been given to me. अब मैं quickly देखता हूँ यहाँ पे, just a second I get, ओके। अब स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो में अगर हम देखोगे स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज 1। आई सब्ट्रैक्ट दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फ्रॉम अदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, then I go here in the second row, the smallest element is again 1, then I see the smallest element is 0, and I see the smallest element is 0, एंड यहाँ पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 है। इसके बाद आई जनरेट दिस, आफ्टर डूइंग दिस आई जनरेट दिस टेबल, यू कैन सी 8, यहाँ पे सब आ गया। नाउ what is my next step is to go column, go in column, this is my first column, मतलब मेरा मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, मशीन डी, मशीन ई। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो आई सी यहाँ पे ऑलरेडी 0 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मुझे कुछ नहीं करना है।
But when I go to the second machine B, I see there is no zero opportunity cost. यहाँ पे कहीं पे भी zero नहीं है, तो I identify the minimum value, that is 2. I subtract from every element. You got this? Then I go here, I do this same thing. यहाँ पे already zero है तो मैं कुछ नहीं करूँगा, but I find out here there is no zero. I find this opportunity cost as minimum. I subtract this from other opportunity cost, या other cost से मैं इसको ये करता हूँ बाकी. So column B and column D does not have any zero. Therefore, we subtract smallest element from this column. Remaining columns are retained. So following table you generate. Is it clear? What is my next step? Next step is to check whether every row and column has zero. Yes, every row and column has zero. I do the assignment. Now, when you do the assignment, now let's try to understand. Now, what is the challenge here? Is it clear? Now I'll just quickly do the assignment as we had studied. जैसा मैंने आपको बताया है, मैं पहले रो में जाऊंगा. आई विल डू दी असाइनमेंट. कैन आई डू दी असाइनमेंट? नहीं, बिकॉज यहाँ पे 3 0 है. आई कैन डू. मैं सेकंड रो में जाऊंगा. यहाँ पे कितना जीरो है? यहाँ पे सिर्फ एक जीरो है. यस, आई कैन डू दी एन असाइनमेंट. सो मैं यहाँ पे असाइनमेंट करता हूँ और इसके कॉलम में कहीं जीरो है क्या उसको स्ट्राइक ऑफ करता हूँ. फिर मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता हूँ. यहाँ आइडेंटिफाई करता हूँ तो यहाँ 2 0 है. यहाँ पे भी मैं असाइनमेंट नहीं कर सकता हूँ. यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ चेक करता हूँ, वही यहाँ पे भी 2 0 है तो असाइनमेंट नहीं कर सकता. देन आई गो कॉलम वाइज. आई सी हियर देयर इज ओनली सिंगल जीरो इन एन कॉलम. आई कैन डू असाइनमेंट इन दिस रो. आई स्ट्राइक ऑफ. इज इट क्लियर? फिर मैं सी जाता हूँ. क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज यहाँ पे 2 0 है. यहाँ पे भी 2 0 है. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट अब मैं रो वाइज भी यहाँ पे 2 2 0 है, कॉलम वाइज भी 2 2 0 है. नाउ देर इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ यू गेटिंग एन अल्टरनेट सॉल्यूशन. अभी यहाँ पे देर माइट बी मेनी पीपल हु विल बी चूजिंग आर्बिट्रेरली. वो इसको असाइनमेंट कर लेंगे, और जब इसको असाइनमेंट किए, और जब आपने इसको असाइनमेंट किए कॉलम में, तो इसके रो में इसको सॉरी ये स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा और ये स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा और यहाँ असाइनमेंट हो जाएगा. सो दिस इज वन प्रोबेबिलिटी. एंड अनदर प्रोबेबिलिटी, somebody will be doing an assignment here and here. So in this way we can get an alternate solution, because you find in both the row you find 2 2 0, and in both the column there are 2 2 0. So arbitrarily we do the assignment. Now how do we do? Let's take an example. इस तरीके से हम लोगों ने किए. एंड दिस वाज द मेथड ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ व्हिच वी हैड स्टडीड. फॉर ईच रो इन विच नो असाइनमेंट इज मेड वी मार्क टिक. ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है मेथड. सो अब इज इट क्लियर? नाउ व्हेन यू सी देयर वर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग असाइनमेंट. हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया दो जगह पे है जहाँ पे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आ सकता है. इन दिस टेबल, दिस आई हैड एक्सप्लेन टू यू. In this table, job 2 and 3 has zero assignment. A and E are possible solution. Job 4 and job 5, an alternative solution can be obtained. Now, this can be one of the alternative solution, and this can also be another alternative solution जहाँ पे assignment हो सकती है. Is it clear? So this can be solution. This can be solution. इज इट क्लियर? सो ये अलग अलग सोल्यूशन है जो हम लोग जनरेट कर सकते हैं. अगेन स्ट्राइकिंग ऑफ मुझे सेम करना है. जहां मैं असाइनमेंट कर दूंगा उसके कॉलम को स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा. जहाँ पे मैंने असाइनमेंट किया उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया. और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जितने भी स्ट्राइक ऑफ लाइन है उसको छोड़ के जो मेरे पास मैट्रिक्स बचता है वहाँ पे जहाँ पे भी जो भी मिनिमम वैल्यू है उसको मैं आइडेंटिफाई करता हूँ. जहाँ पे इंटरसेक्शन है उसमें ऐड करता हूँ. जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है. इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है आपको, आपने स्टडी भी किया है और मैंने आपको समझा भी दिया है. नाउ we'll be seeing an unbalanced assignment problem. I will just quickly revise this for you. Just a second. Okay. Okay. मैं क्विकली आप लोगों के लिए रिवाइज कर देता हूँ अगेन. what we had seen in this problem is that we were getting alternate solution. मतलब we were getting more than two solution कहने का मतलब बहुत सारे जगह पे हम लोग देख रहे थे जहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम में जहाँ पे हम लोगों ने नोटिस किया है, we were finding
देयर वर मोर देन 2 places जहाँ पे जीरो अवेलेबल है इन सेम रोज, 2 रो में और 2 कॉलम में, जिसके कारण हम लोग असाइनमेंट्स नहीं कर पा रहे थे, एंड वी वर नॉट एबल टू डू असाइनमेंट्स, एंड दैट्स द रीजन वी चूज आर्बिट्रली एनी रो एनी कॉलम हम लोग असाइन कर लेते हैं, एंड द मोमेंट वी डू असाइनमेंट द अदर गेट स्ट्राइक ऑफ, और जैसे ही दी अनदर कॉलम या रो को हम लोग स्ट्राइक ऑफ करते हैं, उसी तरीके से हम दूसरे जीरो को भी असाइन कर सकते हैं, एंड इन बोथ दी केसेस यू सी डिफरेंट, मतलब सेम वर्कर को आप अलग अलग जॉब भी असाइन कर सकते हो. सो दिस इज वे वी गेट एन अल्टरनेट सॉल्यूशन. सो दिस इन मोस्ट ऑफ द केसेस एंड इन मोस्ट ऑफ द पेपर आई हैड सीन दिस टाइप ऑफ मैट्रिक्स जहाँ पे मोर देन वन सॉल्यूशन आता है, वही आपको दिया जाता है. इज इट क्लियर? नाउ वी विल बी सीइंग एन another example of unbalance. Okay, I will just share the screen. Okay, now we'll see another example. Unbalanced assignment problem. Kindly read this problem for your understanding. है ना? अब ये अनबैलेंस प्रॉब्लम कैसे है मुझे बताइए. यू कैन राइट इन चैट बॉक्स ऑल्सो. ओके, गुड गुड. ओके, आई होप हाँ अभी आप सभी को समझ में आया ये अनबैलेंस प्रॉब्लम क्यों है. बिकॉज आपने नोटिस किया है. Yes. So, okay. So what you are replying is absolutely right. This is an unbalanced assignment problem because the number of rows are not equal to number of column. That means that यहाँ पे R1, R2, R3, R4 there are 4 rows and there are 5 columns. That's the reason we are supposed to use dummy element. अभी मैं dummy कैसे use करूँगा यहाँ पे. आप सभी ने नोटिस किया है टू यूज डमी इट्स वेरी सिंपल. अब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे सिर्फ 4 रो है और 5 कॉलम है, तो मैं एक अलग से डमी कॉलम लगा लूंगा और जहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 0 रहेंगी. सो फर्स्ट आई विल कन्वर्ट दिस इनटू and balance assignment problem. Now I see the number of roads are lesser than number of contractor. Therefore, in order to take it a square matrix or an square matrix कहने का मतलब they are trying to say is balance matrix. I am supposed to add another column, that is
of 0 0 opportunity cost. Now you see the number of rows are equal to number of column. That means that this matrix, अभी जो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया है, इट्स एन बैलेंस because the number of rows are equal to number of column and the rows are equal to contractor as per our question. अभी मैं सबसे पहले अगेन क्या करता हूँ, आई आइडेंटिफाई द मिनिमम वैल्यू इन एवरी रो और फिर मैं उसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ. नाउ आई आइडेंटिफाई, आप नोटिस करोगे मैंने आइडेंटिफाई किया है यहाँ पे. पहले रो में मैंने गया, इन द फर्स्ट रो आई वेंट, आई आइडेंटिफाइड द मिनिमम वैल्यू इज. अभी ये तो डमी है, ये डमी के पहले भी आप कर सकते हो और बाद में भी डमी लगा सकते हो या डमी करने के बाद भी आप कर सकते हो. व्हेन यू सी इन दिस केस आपने लगा दिया यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे तो अब रो वाइज कुछ नहीं कर सकते बिकॉज जीरो है. यू गो कॉलम वाइज एंड यू गो कॉलम वाइज एंड यू सी द मिनिमम वैल्यू इज 7. आपने सबको 7 से माइनस कर दिया. यहाँ पे मिनिमम वैल्यू इसके अंदर 12 है, ये 12 यू डिड हियर द मिनिमम वैल्यू. अगेन द मिनिमम वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज 18. 18 आपने यहाँ कर लिया. सिमिलरली यू डिड इट हियर एंड दिस इज व्हाट द मैट्रिक्स जो आपको ऑब्टेन हुआ. इज इट क्लियर? ओके. So this is what you got, and then we'll be doing an assignment. Now how do we do an assignment? Hmm. Now how do I do an assignment? Now to do an assignment, अब ये मैं यहाँ पे जाऊँगा, पहले रो में जाऊँगा, यहाँ पे असाइनमेंट करूँगा. यहाँ पे मैं देखूँगा दो जगह पे तो असाइनमेंट नहीं कर सकता हूँ. यहाँ पे मैं अगेन जाऊँगा, यहाँ पे भी नहीं कर सकता. आई गो कॉलम वाइज, तो कॉलम वाइज मैं पहले जगह जाऊँगा, मैंने यहाँ असाइनमेंट किया, इसको स्ट्राइक ऑफ किया. सिमिलरली मैं यहाँ करूँगा तो ये दोनों मेरे स्ट्राइक ऑफ हो जाएंगे. सिमिलरली मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ पे फिर मैं इसको असाइनमेंट करूँगा. इज इट क्लियर? और फिर यहाँ पे कहीं स्ट्राइक ऑफ नहीं है. सिमिलरली मैं यहाँ जाऊँगा तो यहाँ पे दो जगह, एक दो जगह कहीं पे भी बचा नहीं है. ओके, आई कैन डू हियर असाइनमेंट. इस तरीके से मैंने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए. नाउ व्हेन आई सी अगेन 1 2 3 4 5 असाइनमेंट्स मेरे को चाहिए थे, बट 5 असाइनमेंट है क्या? बिल्कुल भी नहीं है 5 असाइनमेंट. इज इट क्लियर? 5 असाइनमेंट नहीं है. नाउ एज द नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आर नॉट 5, व्हाट आई विल बी डूइंग इज आई विल बी स्ट्राइकिंग ऑफ और यूजिंग, मतलब एक टिक वाली मेथड जिसके अंदर मैंने बताया था आपको, अगर मैं यहाँ पे असाइनमेंट करता हूँ कॉलम में तो इसके रो को स्ट्राइक ऑफ करता हूँ. सिमिलरली आई डू दी स्ट्राइक ऑफ हियर, ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्ट्राइक ऑफ कर दिया. एंड स्ट्राइक ऑफ करने के बाद मेरा पहला काम क्या है, आइडेंटिफाइंग द मिनिमम वैल्यू. आई आइडेंटिफाइड द मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू से मैं जहाँ पे स्ट्राइक ऑफ नहीं है और वहाँ पे ऐड करूँगा, और जहाँ पे स्ट्राइक ऑफ है, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे मैं सॉरी मिनी जहाँ पे कहीं पे भी स्ट्राइक ऑफ नहीं है वहाँ से मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, और जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा. तो ये मैंने कर दिया है मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करने के बाद. एंड यू कैन सी फाइनली द असाइनमेंट्स, this final assignment has been done here. This is what you had noticed. Okay, now you see the number of assignments in the row and column are equal. That is 5 assignments चाहिए थे, 5 assignment has been done. So this solution what we had generated is called as optimal solution. ये क्लियर है आपको? अब ये जो solution मुझे मिल गया है ये मेरा optimal solution है. Great. Okay, okay. Now that is nothing but टोटल कॉस्ट में कैलकुलेट कर दूंगा. मेरी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएंगी यहाँ पे. ओके, नाउ दिस इज द, यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, है ना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सबने ले लिया? हाँ. नाउ दिस इज फाइनल असाइनमेंट प्रॉब्लम विथ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव. In this assignment problem, if the objective is to maximize profit instead of
मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, मॉडिफाई द कॉस्ट मैट्रिक्स, जैसे हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन के अंदर पढ़ा था, वी हैड मॉडिफाइड द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इन विच, जहाँ पे हमको प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना था, सो वी हैड आइडेंटिफाइड सबसे जहाँ पे हमारा टोटल कॉस्ट सबसे ज़्यादा है, उस मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई किया और उससे सब्ट्रैक्ट किया. सेम थिंग वी आर डूइंग इन असाइनमेंट प्रॉब्लम, सो दैट वी कन्वर्ट द मैक्सिमाइजेशन problem into minimization problem, we modify that, and finally we use the Hungarian method to find out our optimal solution. Is it clear? But the method is same. So this is what another example. Next example, you can see a company has four factories, F1, F2, F3, F4, which can produce four product A, B, C, D. The sales revenue and everything has been given to you. Now in this question is of maximization. ये क्वेश्चन क्या है? मैक्सिमाइजेशन का. कहने का मतलब क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? आपके टोटल को, आपके प्रॉफिट को आपको इंक्रीज करना है. आप कॉस्ट को थोड़ी मैक्सिमाइज करोगे. यस, आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करोगे. तो एज वी हैड स्टडीड इन द हंगेरियन मेथड, हंगेरियन मेथड जो कहता है हम लोग मिनिमाइज करते हैं कॉस्ट को. सो फर्स्ट विल बी कन्वर्टिंग दिस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम इनटू मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. हाउ डू वी कन्वर्ट दिस? वी कन्वर्ट इट वेरी सिंपली. वी आइडेंटिफाई द हाईएस्ट कॉस्ट, और हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो हाईएस्ट है दैट इज, आपने क्या नोटिस किया है? सो सेल्स रेवेन्यू इन फैक्ट्रीज दैट हैज बीन गिवन टू यू, प्रोडक्शन कॉस्ट आपको दिया हुआ है. आपने problem can be, as you see, the above maximization problem can be converted into minimization problem. To convert this, the number of every number by 25 to get, तो यहाँ पे मैंने स्टेप्स भी लिखे हैं, है ना. Replace all the by difference between the maximization and present element. Modify the cost matrix by taking, modify the cost matrix by taking maximum of all cost element. मैं maximum value ले लेता हूँ और फिर उससे मैं उसको separate करके convert कर देता हूँ. दिस वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, सो ये हमको कोई बड़ी चीज़ नहीं है पढ़ने के लिए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है. Okay, so you can do the same thing again which we had studied. Great, great. So आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना. आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट्स. Yes, we basically subtract from every column with its smallest number and we allocate. So this is how we do the allocation. Is it clear? Now the final solution will be, the product A will be going to factory 2, product B to factory 4, product C to factory 1, product D to factory 3, and the total profit will be like this. So here we end. So here we, okay. So this is what we have studied today in assignment problem. So we had studied three different types.
या सो हम लोगों ने एब्सोल्युटली राइट वी एब्सोल्युटली राइट वी हैड स्टडीड. So we conclude here the assignment problem which we had studied. Now what do you expect? मैं just पहली वाली slide फिर से आपको दिखा देता हूँ as you are asking me to show. Yeah, just a second. I'll be showing the first slide. Yeah. So okay. So this was okay. This is what you are asking. Yeah. So ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल. सो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है. The objective was to minimize the total cost and maximize the total profit. That this is what we had accomplished by Hungarian method. At the end of the day, what I accomplish. हाँ, मैं एक ही चीज accomplish करता हूँ. That is I am assigning. अगर 4 जॉब्स है और 4 वर्कर्स है तो मैं सही वर्कर को सही जॉब असाइन करूँ. और वो मुझे कब पता चलेगा सही वर्कर को सही जॉब में असाइन कर रहा हूँ? when I follow this method and I generate an optimal solution. Now, how do you generate that solution? वो solution तो मैंने आपको already बता दिया है कैसे आप generate कर सकते हो. या हाँ, by this way you generate an optimal solution by using an Hungarian method. या अब यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है व्हेन यू टॉक अबाउट गेट प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी. मेजोरिटी ऑफ द टाइम यू विल बी सीइंग प्रॉब्लम्स जहाँ पे असाइनमेंट्स इक्वल नहीं है. मतलब रो इक्वल टू कॉलम इतनी असाइनमेंट्स नहीं हो रही है. या फिर आप ऐसे क्वेश्चंस देखोगे जहाँ पे आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन एक अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालना पड़ रहा है. जहाँ पे आप देख रहे हो जब आप असाइनमेंट कर रहे हो 2 रो में या 2 कॉलम में, जहाँ पे भी आप असाइनमेंट्स कर रहे हो वहाँ पे आपको मल्टीपल जगह पे जीरो है. दैट्स द रीजन यू आर नॉट एबल टू चूज डायरेक्टली. और आप चूज नहीं कर सकते हो डायरेक्टली, जिसके कारण आपने नोटिस किया है कि आप आर्बिट्रीली किसी भी रो या कॉलम को चूज कर लेते हो ड्यूरिंग एन असाइनमेंट. एंड व्हेन वी चूज आर्बिट्रीली व्हाट हैपेंड इज कोई रो में सिलेक्ट कर लेता है असाइनमेंट, कोई कॉलम में असाइनमेंट कर लेता है. दैट इज द रीजन यू गेट अल्टरनेट सॉल्यूशन. बट यू विल फाइंड द टोटल कॉस्ट इज minimum and optimal. Okay, last, do we have any question? Okay, so we don't have any question at this moment. So okay, so yeah, so basically they ask you these things. Okay, okay, so we had I'll just go through the presentation fast. This is what we had seen. This is what is important and this is what is expected in your gate examination. That is multiple solution जहाँ पे आने की probability ज़्यादा है. Okay, this is how we do the multiple solution. आने का reason भी मैंने आपको बताया था. ये क्यों आए थे? बिकॉज यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे रोज और कॉलम में 2 जगह पे जीरो थे, तो आप किसी को भी सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यू नीड सिंगल जीरो टू डू एन असाइनमेंट. नहीं रहता तो आप उसके कॉलम में जाके असाइनमेंट करते हो. बट इन दिस मैट्रिक्स इफ यू सी, यहाँ पे जो देखोगे यहाँ पे दोनों दो दो जीरो 2 रो में 2 कॉलम में, जिसके कारण आप कर नहीं सकते हो. एंड दैट्स हाउ यू जनरेट एन अल्टरनेटिव सॉल्यूशन. एंड फाइनली लास्ट वी हैड सीन एन अनबैलेंस.
अनबैलेंस हम लोगों ने देखा था. दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस. एंड फाइनली लास्ट वी हैड सीन एन मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव था प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना. पहले हम लोग इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर देते थे, मतलब एक मैक्सिमाइजेशन के प्रॉब्लम को हम लोग मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर देते थे बाय आइडेंटिफाइंग द हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. एंड आफ्टर कन्वर्टिंग इट, हम लोग क्या करते थे, कन्वर्ट करने के बाद अगेन बाय द हंगेरियन मेथड हम लोग उसको सॉल्व करते थे. ओके, एनीथिंग एल्स, anything, any question else you want to ask? Just a second, any other question? So okay, we don't see much questions, so we'll conclude today class here. पीपीटी में आप लोगों को शेयर कर दूंगा. ओके, सो विल एंड द क्लास. इफ यू हैव एनी डाउट, आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो.